jcat May 2021 पेपर। तो MCQs number first is sudden respiratory difficulty after colostomy. What could be the cause? Pulmonary embolism, atelectasis, pneumonia, bronchospasm. अगर सडन रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है आफ्टर कोलोस्टमी, कोई भी सर्जरी के बाद सडन रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही है, व्हाट कुड बी द कॉज? तो क्या होगा इनमें से? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द मोस्ट लाइकली इफ द पेशेंट डिवेल्प्स दिस पोस्ट ऑपरेटिवली within the first 24 hours. However, if develops right at extubation के टाइम पे, then bronchospasm timeline important in question stem. The following are important risk factors for post-operative pulmonary complications (PPCs) except. The following are important risk factors for pulmonary complication: blood pressure during surgery, obesity, obstructive sleep apnea, serum albumin concentration less than 30, normal range 3.4 to 5.4 होती है, chronic obstructive pulmonary disease COPD। तो फॉलोइंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए। एक्सेप्शन है ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग सर्जरी। पोस्ट ऑपरेटिव बतानी है ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है? ओबेसिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन लेस देन 30 और नॉर्मल क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। A 60-year-old patient with chronic obstructive pulmonary disease COPD का पेशेंट है, attends the pre-assessment clinic before undergoing total gastrectomy for gastric carcinoma। COPD का पेशेंट अटेंड करता है pre-assessment clinic। In the clinic, pulse oximetry demonstrate that the percentage of oxygenated hemoglobin is 94% whilst breathing air. The patient is a current smoker and has a wheeze and a cough productive of clear sputum. The following statement is false. The patient should have a chest radiograph. A, B है the patient should be started on corticosteroids. Thoracic epidural is recommended. Post-operative lung expansion therapy may be of benefit. तो बी जो है वो ऑप्शन नहीं होगा। द पेशेंट शुड बी स्टार्टेड ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे स्टार्ट करना। बाकी ठीक है। द पेशेंट शुड हैव अ चेस्ट रेडियोग्राफ इसके असेसमेंट में, और पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं उसको हम स्टार्ट करवाएंगे, थोरेसिक एपिड्यूरल रिकमेंड करेंगे, तो ये भी ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव लंग्स एक्सप्रेशन थेरेपी मे बी ऑफ बेनिफिशियल। A 45-year-old man is scheduled for right hemicolectomy. He is obese, BMI 40 है, smoker है, 20 cigarettes per day. The following statements are true. Stopping smoking may increase the likelihood of acquiring a post-operative pulmonary complication. Neuromuscular blocking agents should be avoided. Inspiratory muscle training would be beneficial. Laparoscopic surgery is preferable to open surgery. Nasogastric tube will be required. The following statements are true. आंसर है ए फॉल्स है, बाकी ट्रू है, ई भी फॉल्स है। स्टॉपिंग स्मोकिंग में इंक्रीज द लाइकलीहुड। राइट हेमिकोलेक्टमी के लिए स्केड्यूल्ड है, बीएमआई इंक्रीज है, 20 सिगरेट्स पर डे लेता है, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। स्टॉपिंग स्मोकिंग में इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ एक्वायरिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, ये गलत है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट शुड बी अवॉइडेड, ये ट्रू है। इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग विल बी बेनिफिशियल। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज प्रेफरेबल टू ओपन सर्जरी, तो लेप्रोस्कोपी प्रेफरेबल है। एनजी ट्यूब विल बी रिक्वायर्ड, तो ये भी गलत है। ए और ई फॉल्स है।
With regard to neuromuscular blocking agents, what is not true? They increase the incidence of post-operative pulmonary complications. They should be monitored qualitatively. They should be short acting. CD. They cause residual neuromuscular block when defined as a train of 4, ratio of less than 0.7. Pulmonary edema can result if they are inadequately reversed. तो इसका आंसर है बी. विद रिगार्ड टू न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स व्हाट इज़ नॉट ट्रू, तो बी जो है वो ट्रू नहीं है, बाकी ठीक है. बी में बताया हुआ दे शुड बी मॉनिटर्ड क्वालिटेटिवली, तो ये गलत है. और बाकी जो ठीक ऑप्शन हैं रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, दे इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, तो दे शुड बी शॉर्ट एक्टिंग, और ये इंसिडेंस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ा सकते हैं. ये दे शुड बी शॉर्ट एक्टिंग. दे काज रेजिडुअल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक व्हेन डिफाइंड एज ए ट्रेन ऑफ 4, रेशो ऑफ लेस देन 0.7 है, तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक काज करवा सकते हैं रेजिडुअल. एंड देन पल्मोनरी एडिमा कैन रिजल्ट इफ दे आर inadequately reversed. MCQ number 6 is which of the following is false statement concerning carbohydrate loading? It has little physiological effect if administered intravenously. तो अगर इंट्राविनसली देंगे तो इसका लिटिल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा. The principal benefit is to ensure the loading of glycogen stores. Standard oral drinks may be replaced by the simple glucose drinks. It reduces insulin resistance. तो कंसर्निंग कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो है ये सी ऑप्शन गलत है कि स्टैंडर्ड ओरल ड्रिंक्स को आप सिंपल ग्लूकोज ड्रिंक से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये गलत है. बाकी ऑप्शंस ठीक हैं कि इसका लिटिल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है अगर आईवी देंगे, और प्रिंसिपल बेनिफिट इसका होता है इंश्योर करवाना ग्लाइकोजन के स्टोर्स को, और ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करती है. ग्लाइकोजन लोडिंग कंसर्निंग इंसुलिन रेजिस्टेंस विच इज़ नॉट ट्रू. Insulin resistance, it increases the magnitude of surgery. After operation, it can be reduced by the use of thoracic epidural anesthesia. It is associated with an impaired post-operative outcome. It is a precursor to the development of hypertension, which, when present, there is an increase in hepatic gluconeogenesis. तो विच इज़ नॉट ट्रू इज़ डी. इट इज़ ए प्रिकर्सर टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से ये हाइपरटेंशन की डेवलपमेंट का प्रिकर्सर नहीं है. ये ऑप्शन गलत, मतलब ये प्रिकर्सर नहीं, उसने कहा हुआ कि प्रिकर्सर है, तो डी ऑप्शन गलत है. बाकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बाकी ऑप्शंस ठीक हैं कि ये इंक्रीज़ करता है विद मैग्नीट्यूड ऑफ सर्जरी के साथ, और आफ्टर ऑपरेशन इसको रिड्यूस कर सकते हैं थोरैसिक स्पाइन एनेस्थीसिया के साथ, और ये एसोसिएटेड होता है इम्पेयर्ड पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम से. और लास्ट में ये भी ठीक है, व्हेन प्रेजेंट देयर इज इंक्रीज इन हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस. चेस्ट ट्यूब इंसर्टेड इन विच स्पेस? ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, 3rd, 6th क्वाड्रेंगुलर स्पेस. तो जो चेस्ट ट्यूब होती है वो प्लेस करते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस, दैट इज ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में. 9 है एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? डायबिटीज़ में एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस होता है, कुशिंग्स डिजीज में, एडिसन्स में, या एसएलई में? तो डायबिटीज़ में होता है ये. टेलर्स ट्रायंगल जो है एट द टाइम ऑफ डाइसेक्शन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर विच एनोमली इज़ नॉट प्रेजेंट. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर विच एनोमली इज़ नॉट प्रेजेंट. तो टेलर्स ट्रायंगल एट द टाइम ऑफ dissection. Cystic duct offshoot from right hepatic artery, bifid common hepatic duct, pharyngeal cap, none of the above. A. Aberrant right hepatic artery. तो इंश्योर कराते हैं कि विच एनोमली इज नॉट प्रेजेंट. ए सिस्टिक डक्ट ऑफ शूट फ्रॉम राइट हेपेटिक आर्टरी या एबरेंट राइट हेपेटिक आर्टरी, तो ये एनोमली को इंश्योर कराते हैं. Young man present to you with no bowel sounds, profuse greenish colored vomiting है, tachycardia है, a tense and tender abdomen है. What is your management plan?
तो नो बाउल साउंड, ग्रीनिश, वॉमिटिंग, टेकिकार्डिया के साथ मैनेजमेंट प्लान क्या है? IV लाइन एंड रिससिटेशन, पास एनजी ट्यूब, लेप्रोटमी, सेंड ऑल बेस्ड लाइन्स। फर्स्ट स्टेप में IV लाइन एंड रिससिटेशन करेंगे। What is the most common cause of wrong side surgery being performed? कॉमन साइड ऑफ रॉन्ग साइड सर्जरी क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन नोट्स। सेकेंड है हाउस ऑफिसर ओवर टाइड, ऑपरेटिंग रूम नर्स नॉट रीडिंग पेशेंट नोट्स, नॉट आस्किंग पेशेंट एंड डबल चेकिंग साइट ऑन टेबल। तो मोस्ट जो हमारे पास रॉन्ग साइड है कि मिस इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। विच फ्लैप टाइप हैज़ नो रिलेशन टू ब्लड सप्लाई? रैंडम फ्लैप का रोटेशन, पेडिसल्ड फ्लैप और आइलैंड फ्लैप्स। तो जो रैंडम फ्लैप्स होते हैं उनका कोई रिलेशन नहीं होता विद ब्लड सप्लाई। 14 MCQs है। आफ्टर स्किन ग्राफ्टिंग व्हाट इज़ द प्रोसेस फ्रॉम विच द स्किन गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स? कौन से प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेगा 24 to 48 आवर्स में? इम्बिबिशन, न्यूवास्कुलाइजेशन, डिफ्यूजन, सबडर्मल प्लेक्सिस। तो होता है इम्बिबिशन के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन